We deem it a proud privilege to have in our midst prominent educationist and thinker, Dr. Guwahati. I would now request Dr. Guwahati to please say a few words to the gathering. আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে অসমৰ এজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীৱী, গৱেষক, শিক্ষাবিদ শ্ৰীযুত শ্ৰদ্ধাৰ হীৰেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া। ছাৰক মঞ্চলৈ মাতিছোঁ আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানত। ছাৰে দুআষাৰ ক'ব আমাক। পোনপ্ৰথমে ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁই আমাৰ ছাৰ, আমাৰ শিক্ষাবিদ, আমাৰ শিক্ষক আছিলে এসময়ত। তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। ছাৰ, আপোনাৰ পৰা আশা কৰিব বিচাৰিছোঁ। It has been all a little sudden. I have been dragged into the meeting without any preparation, and I ask forgiveness if I sound too abrupt or, casual. Actually, in my younger days, when the socialist movement was very much alive, and the parliament was dominated by socialist members, who were former colleagues of Jawaharlal Nehru, but had turned into his bitterest critics. And thanks to them, their unceasing criticism and unquestionable patriotism made their speeches not only worth listening to, but also almost mandatory for all parliamentarians. I remember people like H.V. Kamat, our own Hemburwa, and a few others, whose names don't come to my mind at the moment. They dominated the proceedings of the parliament, exposing corruption, anomalies, not with a destructive instinct, but with a view to furthering the development of the newborn independent country. India was very old, our independence was fairly recent. And I wonder what has happened to that heroic band of soldiers. And it is in fact true that they had not been honored enough. Lohia was, as far as I remember, one of the most forthright critics of Nehru, whom, by the way, I admire quite a lot. For example, I remember one debate in Parliament which appeared to rock the whole nation. Lohia claimed in Parliament that in spite of the bravado of the government, poverty in India had not at all been alleviated to any extent. He cited statistics to prove that the daily earnings of the Indian, of the average Indian, were not more than 12 annas.
in today's value 75% daily earning. Nehru was outraged. This is impossible. How can it happen? We have made such progress. Some development has taken place. How can the poor subsist on 112 around? He challenged Lohia, but in the end, it was Lohia's views which triumphed, and Nehru had to eat his words. This is the mettle of the people who were there in Parliament, not as cacophonous, purveyors of worthless chatter, but responsible and also forthright and fairly well-versed people with command of facts. And I wish that socialist tradition would revive. And it's also a pity that their contribution has remained a little undervalued. A history of the Socialist Party of India, social movement in India, should be authored by people among you, and it will be a fitting tribute to such a powerful movement with so much contribution, not only to freedom movement, to our thought also. Jayaprakash, Lohia, they had been very critical of the communist experience. They had the same goal of socialism, but they were in two minds about its outcome in the world at that time. And I think they gave very reasonable and reasoned answers to those questions. They put their finger on certain fundamental defects of the communist system as it evolved. And I think that was remarkable insight. But I also felt that they were leaning too much on America, which was out and out, an imperialist country. And the episode of the movement for URVASIAM, for sufficient acknowledgement of links between the tribals and the people of the plains, is another milestone in the history of the Socialist Party. Not that it was very well thought out, because the relationship between tribals and the plains people are still a very fraught issue, and one is not sure how to really shape them, how to really think about them, how to bring about peaceful reconciliation so that we all become part of a larger society. You know what is happening now on the old borders of Assam. In spite of the protection given by the center to them, there are frequent outbursts of violence on the border, and the result has not been happy for either party. So Lohia's insistence, and those of some of his disciples, that there should not be a Chinese wall between those tribals and the plains people of Assam, was well taken, and it should have been given a proper, fair examination. That is all I know, and I think more attention will be given to it by the scholars, and we shall know about those things with richer understanding and to the benefit of the nation. Thank you. Thank you, sir, for your invaluable words to us. Now I would like to invite Sri T. Gopal Singh from Lohia Vichar Manch, Hyderabad, to address the gathering.
Mr. T. Gopal Singh. We now greet and welcome Dr. T. Gopal Singh with a Phulam Gamusa. साथियों, भाइयों और बहनों, आज इस आसाम की इस पुण्य धरती पर हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के तीसरे विशाल मंचन के आयोजन पर यहाँ पर जमा हुए हैं। इसके लिए मैं विशेषकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन एवं उसके डायरेक्टर श्री अभिषेक रंजन सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया और हमारे आसाम के साथियों को जो सहयोग उन्होंने करके इस आयोजन को सफल बनाया, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर लोहिया की एक अलग पर्सनालिटी थी। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे। लोग समझते थे कि लोहिया एक पॉलिटिशियन है, एंटी नेहरू है, नेहरू को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और तरह तरह के बारे में, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल उनका डिफरेंट, वो कला के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, समाज के बारे में, हर विचार पे अपने विचार रखते थे। अभी हाल ही में हमने पिछले महीने हैदराबाद में एक उनके हिंदी पुस्तकों का तेलुगु में अनुवाद करवाया, जो रामकृष्ण शिव और सावित्री, द्रौपदी सावित्री, वाल्मीकि वशिष्ठ, धर्म पर एक दृष्टि, इस तरह हिंदू धर्म के भगवानों के ऊपर उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उसका हम लोगों ने तेलुगु में अनुवाद करवा के तेलुगु के विद्वानों द्वारा उसके ऊपर उनके स्पष्ट विचार लिखकर उसको प्रकाशित किया। उसका काफ़ी स्वागत हुआ तेलंगाना में। इस तरह उनका हर चीज़ पर उन्होंने अपने विचार रखते थे। द्रौपदी सावित्री के बारे में उन्होंने कहा कि लोग हिंदुस्तानी लड़की को, हिंदुस्तानी महिला को घर में बोलते तो वही सावित्री के जैसा बनना, सती सावित्री होना, लेकिन वो कहते थे कि हिंदुस्तानी औरत की प्रतिनिधि द्रौपदी होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी महाभारत में 20 दरबार में खड़े रह के अपने घर के बड़ों से, अपने पितामह से, अपने ससुर के सामने खड़े होकर वो बहस की और उनके गलत निर्णयों का उसने विरोध किया। तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारतीय नारी द्रौपदी को अपना मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इस तरह उनके विचार, हर विषय पर उनके विचार थे। वाल्मीकि वशिष्ठ, उसके बारे में भी वो डिफ्रेंशिएट करते, वाल्मीकि के क्या क्वालिटीज़ थे, वशिष्ठ के क्या क्वालिटीज़ थे। जब वो जेल में बंद थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जो उसी में उस चिट्ठी में उन्होंने वाल्मीकि और वशिष्ठ का जिक्र किया था। वो इतना डिटेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि बाद में वो एक पुस्तक बन गई। तो रामकृष्ण शिव के बारे में भी बोलते थे कि राम में क्या क्वालिटीज़ थे, शिव में क्या थे, कृष्ण में क्या थे, प्लस पॉइंट्स क्या थे, माइनस पॉइंट्स क्या थे। इस तरह हर विषय पर वो अपने विचार रखते थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की और एक विशेषता थी कि जहाँ भी वो अन्याय देखते थे, वो उसके ऊपर खिलाफ में खड़े हो जाते थे। तो जैसे गोवा का हुआ, वो लाहौर जेल से छूट के आए थे, उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, तो उनके गोवा के मित्र ने उनको गोवा में आके आराम करने के लिए सुझाव दिया। लेकिन वो गोवा में कुछ आराम करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि पुर्तगाल शासन का वहाँ पर कैसा अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों ने आके उनको बताया कि हमारे वहाँ के लोगों पर जो अत्याचार पुर्तगाल के शासकों द्वारा होता है, तो वो खामोश नहीं बैठ सके और उन्होंने वहाँ पर उसका विद्रोह शुरू कर दिया। वही विद्रोह आगे जाके विशाल रूप बना और गोवा लिबरेट हुआ, गोवा आज़ाद हुआ। आज भी गोवा में लोग जैसा हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को मानते हैं, वैसे गोवा के लोग डॉक्टर लोहिया को मानते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इधर आसाम आने के लिए, मणिपुर आने के लिए परमिट लेना पड़ता था, अरुणाचल प्रदेश आने के लिए, तो उनको ये अजीब लगा कि भाई ये क्या अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए परमिट लेना है। तो उन्होंने इसका विरोध किया
और आंदोलन किया, यहाँ पर आए और उनको आसाम के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला, आसाम के साथियों का, समाजवादी साथियों का, और वो परमिट सिस्टम भी ख़त्म हुआ। इस तरह डॉक्टर लोहिया जहाँ भी कुछ भी गलती देखते थे, अन्याय देखते थे, उसके विरोध में खड़े हो जाते थे। अमेरिका में उनको अमेरिका के साथियों ने भाषण देने के लिए लेक्चर टूर पे इनवाइट किया। तो वो लेक्चर टूर में जब अमेरिका गए थे तो एक शहर में ऐसी टहलते हुए उन्होंने एक होटल के सामने देखा कि यहाँ पर ब्लैक पर्सन्स आर नॉट अलाउड। वो इनको बुरा लगा कि भाई ये क्या रंग भेद, क्या है ये, गोरा काला। तो बोले मैं होटल में कॉफ़ी पीऊँगा। होटल में गए तो होटल का मैनेजर आ गया और बहुत ही सभ्यता से उनको हाथ जोड़ के बोला कि भाई सॉरी सर, वी कैनॉट सर्व यू, वी कैनॉट सर्व कॉफ़ी टू यू। बोले नहीं भाई मैं पीऊँगा कॉफ़ी। तो वो वहाँ हो गया, फिर पुलिस आई, उनको अरेस्ट करे तो अरेस्ट हो गए, वो कोई विरोध नहीं करे। दूसरे दिन अमेरिका के राष्ट्रपति को माफ़ी मांगना पड़ा जब उनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के एक पार्लियामेंट मेंबर को ऐसा अरेस्ट किया गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने माफ़ी मांगी। तो इस तरह डॉक्टर लोहिया जहाँ भी जाते थे, जो भी गलत काम देखते थे उसका विरोध करते थे। वैसे डॉक्टर लोहिया के आज उनको मर के 55 साल हो गए, उनका देहांत हो गए, लेकिन आज 55 साल के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर लोहिया के विचारों के बारे में, उनके लिखी हुई पुस्तकों पे अनुवाद हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं। तो ये आदमी की एक विशेषता, लोग देहांत होने के बाद 1-2 साल के बाद सब भूल जाते हैं, चीफ मिनिस्टर रहने दो, प्राइम मिनिस्टर रहने दो, कोई याद नहीं करता। लेकिन आज 55 साल के बाद भी उनको याद कर रहे हैं, तो उसमें उनकी ग्रेटनेस, उनके जो विचार उन्होंने रखे थे उसका महत्व अपने को मालूम होता है। विशेषकर हमारे अभिषेक रंजन जी को मैं काफ़ी साधुवाद दूंगा, उनको ये बधाई दूंगा कि वो पिछले 5-6 साल से लगातार इस अभियान में लगे हैं कि किस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर लोहिया के विचारों को पहुंचाया जाए। उन्होंने इसी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया और रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में वो डॉक्टर लोहिया के जो दुर्लभ पुस्तकें थी, दुर्लभ फोटोग्राफ्स थे, वो गांव-गांव में, जिलों में जहाँ जाते थे, वहाँ से उन्होंने वो फोटों को, पुस्तकों को जमा किया और उसको प्रकाशित किया। आज उनके कुछ ऐसे, हम आज 50 साल से समाजवादी आंदोलन में हैं, लेकिन हमको भी उसके बारे में नहीं मालूम था कि डॉक्टर लोहिया ने ऐसा आसाम में किया है या फला। तो आज अभिषेक रंजन सिंह की मेहनत की वजह से ही ये सब चीज़ें बाहर आई, तो लोग इसको तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये काम भी डॉक्टर लोहिया ने किया था। तो मैं चाहता हूं कि अभिषेक रंजन इसी तरह लगे रहे। अभी भगवान की दया से उनको काफ़ी, उनकी कम उम्र के हैं, उनको और 30-40 साल इस काम को आगे लेके जाना है और देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के आयोजन करते हुए हर साल में 2-3 बार करते रहे। अभी आज ही हमारे लखनऊ से शाहनवाज कादरी साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगला सम्मेलन हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में करेंगे। तो इस तरह लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं कि भाई हम करेंगे, हमारे पास आप लोग आइए। तो अभिषेक रंजन सिंह इस काम में लगे हुए हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के फिरते रहते हैं साल भर। नौजवान लड़का है, हमारी उम्र में परिवार को छोड़े तो अलग बात है, लेकिन एक नौजवान लड़का परिवार को छोड़ के साल भर, वो विशेषकर कोरोना के दौरान करीब 4 बार वो हैदराबाद आया। जिस दिन हैदराबाद वो आया, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लग गया था, शहर में दुकानें बंद हो गई थी, उसको खाने का प्रॉब्लम हो गया था, ठहरने का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो बोला नहीं, मैं रहूँगा और यहाँ रह के 2-4 दिन जो भी काम है, लोहिया की जो सामग्री इस तक जमा करना है, करूँगा। इस तरह लगन से वो फिर रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा समय निकाले और ज़्यादा इस तरह के सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित करे, और हमसे जो भी होगा हम उसके साथ पीछे से उसको समर्थ करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और अभी बहुत काम करना है। लोहिया की इतनी सामग्री है, डॉक्टर लोहिया की अप्रकाशित, पब्लिश नहीं हुई। पहले डॉक्टर बद्री विशाल पीटी जी थे हैदराबाद में, तो उन्होंने उनकी काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित की। वो इतने बड़े परिवार के थे,
लेकिन वो लोहिया के पीछे अपना टेप रिकॉर्डर लेके चलते रहते थे। जहाँ भी उनका भाषण होता था उसको टेप रिकॉर्ड करके वो उसको लाके फिर उनका एक अलग से प्रेस था, वो प्रेस में लोहिया सामग्री छपती थी हैदराबाद में। तो लेकिन बद्री विशाल जी की मृत्यु के बाद वो काम रुक गया है, उस लेवल पे वो काम नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है उनके मुकाबले, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि साल में 1-2 पुस्तक छप जाए, निकल जाए, कुछ अनुवाद छप जाए तेलुगु में और अलग भाषाओं में। तो इस कोशिश में लगे हैं। और भी हमारे साथी लोग हैं, लखनऊ से शाहनवाज कादरी जी है, राम बाबू अग्रवाल जी आए हैं इंदौर से, और दूसरे प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग भी आगे बढ़े और इस कार्यक्रम को लेके अभिषेक रंजन को आगे बढ़ाते हुए लोहिया साहित्य और विचारों को, हमको राजनीति से कुछ करना नहीं है, किसी को कोई एमएलए बनना नहीं है, ना किसी को एमपी, लेकिन लोहिया के विचार समाज में पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हमने लोहिया विचार मंच का गठन किया हैदराबाद में, और उसी के तत्वाधान में हम विशेष आयोजन करते रहते हैं साल में 3-4 बार। और बाहर भी जहाँ भी इस आयोजन होता है हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोहिया साहित्य उन सम्मेलनों में पहुँचे और उसके द्वारा कार्यकर्ताओं तक पहुँचे। इसलिए मेरे को जो आयोजकों ने इसका समय दिया उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद टी गोपाल सिंह डांगरिया। और यार लगे लगे आज आमार प्रथम अधिवेशन अंत परिছে, द्वितीय अधिवेशन आरम्भ हब। सकलोके एकाप चाह खाबर बारे अनुरोध जनाइछु, बाहिरत आमार चाहर व्यवस्था आछे। धन्यवाद। The release of the souvenir and 4 books related to Dr. Lohia. Then we'll have the conferment of the Lohia Ratna Award and also the Smriti Samman. We'll also have the release of the website dedicated to Dr. Lohia Research Foundation and the screening of the short film URVASIAM. The later session will be a panel discussion which will be moderated by Mr. Boyur Bora. Now we are breaking for lunch. Thank you. कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपके यहाँ तो आपके हाथ तक खाना खाया वही थे नागेंद्र सिंह सीतामढ़ी रघुनाथ ऐसे रुकना जी ठीक है। Namaskar. Welcome back to the second session of the first day's program held this day on the 19th of November. First of all, to begin with the session, I'd like to invite respected Shri Harivansh to the dais, who is the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. I would like to request someone from the organization to kindly, Nava Barpatra Gohai, will you kindly escort respected Harivansh to the dais? Rajya Sabhar Upadhyaksh Hanmaniya Srijut Harivansh Narayan Singh Dangoriak ami moncholoi amantron janaichu. I would now like to invite on the dais Shri Anil Hegre,
member of Rajya Sabha. I would request Niranjan Saikya to escort Sri Anil Hegre to the dais. এইবাৰ আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শ্ৰীযুত অনিল হেগড়ে ডাঙৰীয়া। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হেগড়ে ডাঙৰীয়া এজন প্ৰবীণ সমাজবাদী নেতা। প্ৰয়াত সমাজবাদী নেতা জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে হেগড়ে ডাঙৰীয়াই কৰ্ণাটকত জনতা দলৰ উত্থানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। I would now like to invite respected Sri Ajay Kumar Datta, a veteran social worker and a member of Sri Gulab Borbara's ministry. He was an MLA at that time. Yes, I know, you were an MLA. এয়া আমাৰ মাজত পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত শ্ৰীযুত অজয় কুমাৰ দত্ত। দত্ত ডাঙৰীয়া অসমৰ এগৰাকী প্ৰধান সমাজকৰ্মী নেতা আৰু কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংগঠনৰ সৈতে তেখেত জড়িত। I would now like to invite on the dais Dr. Suresh Khernar, who had been the former president of Rashtriya Seva Dal. Sri Navakumar Borpatra Gohai will kindly escort Dr. Suresh Khernar to the dais. মঞ্চলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্ৰীযুত ডক্টৰ সুৰেশ খাইনাৰ ডাঙৰীয়া। ডক্টৰ খাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু তেওঁ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই ডক্টৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ মানৱ অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। And finally, I would like to invite Dr. Dinesh Kumar Sarangi, ex-Health Minister, Jharkhand, to the dais. Niranjan Saikya will kindly escort Mr. Sarangi to the dais. মঞ্চলৈ দীনেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। We will now have the felicitation of the dignitaries on the dais. First, we would like to felicitate respected Sri Harivansh with a Phulam Gamusa, a memento and a bouquet. Next, we'd like to felicitate Sri Anil Hegre with a Phulam Gamusa, a memento and a bouquet. Thank you. Next, we'd like to felicitate Sri Ajay Kumar Datta with a Phulam Gamusa, a memento and a bouquet. Next, we'd like to felicitate Dr. Suresh Khernar with a Phulam Gamusa, a bouquet and a memento. Now we'd like to felicitate Dr. Dinesh Kumar Sarangi with a Phulam Gamusa, a bouquet and a memento. Now we will have another program which will be the carrying of the torch from the Goa session to the Guwahati, and then from Guwahati, I think that will be onwards, it will be taken to Ranchi, if I'm not mistaken. I would like to call upon the organizers, Mr. Abhishek, to kindly escort अपना देश अपनी
मिट्टी, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, अपना देश अपना मिट्टी, अपना देश अपनी मिट्टी, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी। Last year, the Rashtriya Vichar convention was held in Goa, and we are 6 of us from Goa who have come here for this year's Rashtriya Vichar this session. गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी। साथियों, ये एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन की एक परंपरा है कि गत वर्ष हम जहां अपना प्रोग्राम करते हैं राष्ट्रीय विचार मंचन, वहां की जो आयोजन समिति है वो वर्तमान राज्य के आयोजन समिति को ये लैंप दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो गोवा के आयोजन समिति के जो अध्यक्ष और ये समिति से लोग हैं, संदेश प्रभु देसाई, अनंत अग्नि, प्रशांत नायक जी, ये सभी लोग आदरणीय हरिवंश जी को ये लैंप दें और ये लैंप गुवाहाटी के आयोजन समिति को सर दें और इसी लैंप के लौ से गोवा पे जो ये इनॉग्रेशन होगा, इसी की लौ से ये दीपक जलेंगे। ये गोवा से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचारों की लौ है वो लगातार बनी रहे। ये मकसद यही है कि डॉक्टर लोहिया के जो विचार हैं वो गोवा अरब सागर से चलकर आज ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और गोवा के लौ से ही थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। ये जो लैंप हमने लाया है गोवा से, उसको कोंकणी में, हमारे गोवा के भाषा कोंकणी में लामंडियो कहते हैं और वो गोवा की स्पेशलिटी है। हमारी आशा है कि गोवा में जो ये दीप जला के हमने गुवाहाटी में लाया है वो ऐसे ही बड़ा होके पूरे भारत भर घूम सकेगा। थैंक यू वेरी मच। I will now hand over the mic to Sukanya and Shantanu to conduct the program onwards. Thank you. धन्यवाद बाइदो। नमस्कार देवियों और सज्जनों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से तृतीय राष्ट्रीय विचार मंथन की दूसरी बैठक में हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शिता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के उर्वश्यम अभियान के 65 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी के चलते भारत के कोने कोने से गणमान्य व्यक्तियों और विशिष्ट अतिथि के उपस्थिति से हम अभिभूत हुए हैं। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को अपने बीच पाकर हम अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये संक्षिप्त में उनके बारे में 2 शब्द। हरिवंश जी वर्तमान में राज्यसभा के माननीय उपसभापति हैं। मूल रूप से बलिया जिले के सिताब दियारा गांव का रहने वाले सिताब दियारा यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र की पढ़ाई के बाद वे पत्रकारिता का प्रशिक्षण कोर्स कर टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के परीक्षु पत्रकार बने और करीब 4 दशक तक सक्रिय पत्रकारिता में रहे। धर्मयुग, रविवार जैसा पत्रिकाओं में पत्रकारिता की और फिर करीब 3 दशक तक झारखंड के अखबार प्रभात खबर से जुड़े रहे। इनके संपादन और नेतृत्व में वो अखबार देश के पत्रकारिता का एक मॉडल बन गया। इस बीच
वे प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जुड़े। 2014 में वह यशस्वी समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के साथ संसदीय राजनीति में आए, राज्यसभा संसद बनकर। वह करीब दर्जन भर महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं। पिछले साल इन्होंने श्री चंद्रशेखर जी की जीवनी लिखी, जिसके लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अब डेस्क पर हम आमंत्रण करना चाहेंगे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री हरिवंश जी को, ताकि अपने विचारों से मंच की शोभा बढ़ाए। माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं डॉक्टर सुरेश खैरनार, राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष, उनसे चाहूँगा कि वो अपना संक्षिप्त वक्तव्य दें। डॉक्टर सुरेश। माननीय हरिवंश जी, अनिल हेगड़े जी, दत्ता साहब सारंगी जी और मुख्य रूप से अभिषेक, जो लगभग 3 या 4 साल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेकर, डॉक्टर लोहिया या हम अपने आप को लोहियावादी बोलने वाले सब लगभग मेरे जैसे सफ़ेद दाढ़ी के और बाल उड़े हुए लोग हैं। ये हमारी पूरी जमात में का, हमारे बच्चे के एज का ये लड़का 40-42 साल का, जो कंसिस्टेंसी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेके लगातार गोवा, उसके पहले कोलकाता और आज हम गुवाहाटी में, और वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन के जो महत्वपूर्ण जो आयाम है, गोवा का मुक्ति का, जहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे, लेकिन उनका जो स्वभाव है, अमेरिका के होटल की बात हो या गोवा की हो या कहीं आसाम की हो, कि जहाँ की जो समस्या देखी, जो एक मराठी कविता हमेशा मुझे शिरवाडकर की याद आती है कि मैं पहले मराठी में मैं बता दूँ, अन्याय घडो से जारी, अन्याय मेरे बगल में हो या दुनियेच्या बाजारी, यानी विश्व के किसी और पटल पे, धावून तिथे ही जाऊ, दौड़ के वहाँ पर जाऊँगा और स्वतंत्र मंत्र गाऊँ। इस ढंग के टेम्परामेंट के डॉक्टर लोहिया होने के कारण, संसद सदस्य होने के बाद जब आसाम में उनको पता चला, उस समय नेफा बोला जाता था, आज उसका 65वां साल का उपलक्ष्य में हम लोग इस आयोजन में आए हुए हैं। वैसे ही गोवा में पिछले यही 1 साल पहले की बात है, गोवा की आज़ादी के बारे में हाल में मैंने किसी की पोस्ट देखी, गणमान्य व्यक्ति है, लेकिन मैं विवाद में जाना नहीं चाहता, कि कुछ नहीं हुआ ये वो। गोवा में रविंद्र सभागार में एक ज़बरदस्त ढंग का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से लोग आए थे, कुछ लोग उसमें से अभी भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। गोवा के आज़ादी का 75 साल का गोवा सरकार ने या गोवा के लोगों ने क्या किया वो अलग बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन की तरफ से गोवा की आज़ादी का 75वां 2 दिन का बहुत ज़बरदस्त और विभिन्न विषयों के ऊपर वहाँ भी कार्यक्रम किया गया इसी बैनर के तहत। और आज उर्वशीयम सत्याग्रह के बहाने हम लोग यहाँ पर, यानी डॉक्टर साहब के जीवन में उन्होंने जो जो इसके आगे का झारखंड में का है, खरसवा सत्याग्रह के बारे में का, ये चीज़ें मुझे होश आया तब से मैं इंदुमती केलकर, आचार्य केलकर के थ्रू डॉक्टर साहब की तरफ आया हूँ। मराठी में उनका अनुवाद किया हुआ सब कुछ पढ़कर मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन के ये जो आयाम है अलग अलग, भारतीय राजनीति में ऐसा पोटेंशियल डॉक्टर आम्बेडकर के बाद दूसरा कोई आदमी है तो राम मनोहर लोहिया है। जाति से लेके, मौलिक अधिकारों से लेके, आज़ादी से लेके, गैर बराबरी से लेके, स्त्री पुरुष समता से लेके, जीवन के विभिन्न ऐसे कई आयाम है जिस पर डॉक्टर साहब का एक एकेडमिक लेवल पर, क्योंकि मुझे वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ा, इस ढंग का काम भारतीय राजनीति में का मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का मालूम नहीं। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हमारे मित्र आए हुए हैं, वो दुरुस्त करें मुझे कि भारतीय राजनीति में इस टीचर का चिंतक, राजनेता शायद डॉक्टर लोहिया, अम्बेडकर के बाद, अम्बेडकर भी एक शख्सियत थे और डॉक्टर लोहिया, ये 2 डॉक्टर जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक ऐसा आयाम, एक ऐसा पैगाम दिया है जिनके बहाने आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज अगर डॉक्टर लोहिया होते तो क्या किया होता, क्योंकि आज की तारीख में भारत की जो स्थिति गत कुछ सालों से जो बनी है, बनाई जा रही है, यह अभी हाल ही में एक पत्रकार ने ही लिखी हुई किताब है, हु किल्ड जज लोहिया। एक हाईकोर्ट रैंक का सीबीआई का जज जिसके पास में कुछ हत्याओं के मामले चल रहे थे, और वो नागपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर से 3 किलोमीटर की पेरी में सरकारी अतिथि गृह में मारे गए हैं। 47 साल की उम्र के थे, और ये 300 पन्नों की किताब अभी शायद हफ्ते भर में मेरा टेलीग्राफ पे रिव्यू आएगा, या अभी हाल ही में मैंने पढ़ के अलग की है। मैं एक किताब पढ़ने के बाद से बेचैन हूँ। जिस देश में एक जज मारा जाता हो, उस देश में अन्य सामान्य लोगों की जान की क्या ये हो सकती है चिंता, ये मुझे इस बहाने सता रही है। और ये परिवार आज बुरी तरह से भयभीत है, किस ढंग से उनका जीवन चल रहा क्या है, ये सब उसमें लिखा गया है। और काफ़ी नाम है, मैं सब अभी इस पर कोट करना नहीं चाहता हूँ। अलग से अगर आसाम में कई कार्यक्रम होने जा रहा है तब मैं कहूँगा विस्तार से, लेकिन ये स्थिति में आज हम जी रहे। डॉक्टर साहब होते जो मैंने समझाया, उनको क्या किया होता। एक दूसरी किताब वो भी एक पत्रकार की है, और एक लड़की है राना अयूब नाम की, गुजरात फाइल्स, कश्मीर फाइल्स आप लोग सुन रहे होंगे। किस ढंग से गुजरात का पूरा मामला करने के बाद में वर्तमान सरकार कायम हुई है। भारत की संसदीय प्रणाली का इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा पतन कुछ और हो नहीं सकता है कि सिर्फ सांप्रदायिकता का कार्ड खेलकर, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस मुल्क में दिल्ली तक पहुंचना इस मुल्क की पूरी आबादी का अपमान है। 30 से 40 करोड़ की संख्या में आप सबका समाज रहता है। जो जस्टिस अहमदी हो, हमीद अंसारी हो, यहाँ बैठे हुए कोई कादरी हो, हर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। ये जो आज मुल्क का हाल बनाया गया है कि देश के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके लिए डॉक्टर राममनोहर लोहिया अगर आज होते, उनकी आत्मा, उनका दिल, उन्होंने खुद क्या किया होता, ये मैं लोहिया को पढ़ने के बाद, लोहिया को जानने समझने के बाद तो मैं समझता हूँ। वर्तमान समय में जिसमें हमको जीना पड़ रहा है, हमारे अपने बच्चे बड़े होने जा रहे हैं, मुझे मेरे नाती पोती को जवाब देना है कि उनके लिए हम कौन सी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। ये दुनिया अगर उनके लिए हमको छोड़ना है तो हमें अपने आप पे लानत है। और लोहिया, गांधी, जयप्रकाश का नाम लेने की भी हमको शायद शर्म आनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ों को बदलने के लिए डॉक्टर राममनोहर लोहिया का स्मरण, जयप्रकाश जी का स्मरण, गांधी जी का स्मरण, यही सही स्मरण हो सकता है। इस स्थिति को हम लोगों ने बदलने के लिए लामबद्ध होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Dr. Suresh Kherniar. Our next speaker today is Shri Anil Hegde, member of Rajya Sabha. He is a veteran socialist leader and has been a long-term aide of late socialist stalwart George Fernandes and was instrumental in organizing Janata Dal in Karnataka state. He had joined hands with George Fernandes in several of the movements and agitations the latter was involved in. Shri Anil Hegde has been arrested a record more than 4,000 times till date for participating in agitations and protests. It's an honor to have him up with us today. Respected Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, respected Shri Ajay Datta ji, Karnar Sahab, Dr. Sarangi ji, and my friends. I consider it my privilege to be invited here to address this gathering at this college in the Cotton University, where Dr. Lohia also addressed students and intellectuals in 1958, around November 1958. First of all, I congratulate the Lohia Research Foundation for organizing this URVASIAM program, which is the third of the series.
I learned that this is the 65th year of the URVASIAM Abhiyan, which is being commemorated here. I believe a short film is also being shown here today. And to uphold the values and ideals and to rekindle the spirit of Dr. Lohia's values to the new generation, Mr. Abhishek has organized this function. I congratulate Shri Abhishek ji. I believe today Lohia Ratna awards are also being given to late Golab Barbaro ji, who was a lifelong associate of Dr. Lohia, even in the URVASIAM campaign. Late Shri Birendra Kumar Bhattacharya ji, late Madhulime ji, and late Rajnarayan ji, posthumously. Friends, Dr. Lohia named the then Northeast as URVASIAM, the land of Urvashi. Lohia was himself a human rights activist, and in the Northeast during this campaign he addressed a couple of meetings, many meetings, defying prohibitory orders, etc. And he raised his voice for basic human rights. Friends, in this very hall, Dr. Lohia ji spoke about the linguistic unity. And when I hear the name linguistic unity, I remember in the recent years carrying forward the legacy of Dr. Lohia, George Fernandez, who was also a great human rights activist, who worked tirelessly for the cause of the Northeast. In the late 2006, early 2007, when there was attack on some North Indians here in Assam, George Fernandez visited here. He was always a friend of the underground leaders, Naxal leaders, and all these underground people also had great respect for him. The Ulfa leaders and the NSC and IM leaders and all. When there was this attack on the North Indians, George Fernandez straight came here and went to the Guwahati Central Jail to meet the Ulfa leaders, incarcerated Ulfa leaders, Pradeep Gogoi and others. And immediately there was peace here. Lohia always used to say to the socialists, keep an eye on the Northeast. George Fernandez was very sympathetic with the UG leaders, Naxalites, etc. He tirelessly fought for human rights. As I told you, the day he visited Mr. Paresh Barua in the jail in 2007, on the 9th of January 2007, after coming out of the jail, somebody told him that we should be visiting Paresh Barua's residence. I believe it is nearly 500 kilometers from here. At the age of 77, George Fernandez was not really keeping good health. The very next, he cancelled all his program going back, and he drove from here to Paresh Barua's residence. He met his mother and all. And that's how he used to
keep relationship with such leaders in the interest of the country. Friends, I would also want to give you one example of how socialists in the country worked in various capacities in the Northeast. In the year 1997, George Fernandez had formed the Socialist Party, Socialist Samata Party, and in the first week of August, Time magazine published a report saying that from Myanmar, number 4 powder, that is heroin, was being smuggled into Manipur, and the heroin which was being bought at 2 lakh rupees per kg in Myanmar, in the Golden Triangle, used to come, it used to get smuggled here to Manipur, and it was being sold at 8 lakh rupees. And when it reached Europe, its ultimate destination in Europe, it used to be sold at 1 crore rupees. And so it also, the report also said that because of this heroin, the youth of Manipur, 1 out of 4 youth are AIDS positive. So immediately from the party, we didn't have much base in Manipur, but nevertheless, George Fernandez organized his people, went to More border, and he, More at that time there is heavy insurgency there, and without any security, George Fernandez went there, and we all had our human chain program there, and that is how George Fernandez showed his concern to the people of Northeast. The report at that point of time, the Time magazine said, soon Manipur would become the AIDS capital of the world, because in a small geographical area, more number of people are getting infected to AIDS. But in the later years also, when after 15 years, when the report was submitted in the Manipur Assembly, that also proved to be right, and many people had grown this thing. But I also want to let you know that the Nitish Kumar, George Fernandez and Rabi Rai, when they formed the Samata Party, it was Golab Barbora of Assam, he joined this party. He also came out of this party, he came out of the Janata Dal and joined our party, and our first MLA of the Samata Party then was from Manipur. Friends, you all must be knowing the contribution of the socialists in Nagaland also. Friends, soon after the First World War, प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद 20 लोग नागा क्लब फॉर्म किए और अपना आइडेंटिटी को वो लोग एसर्ट करना था, और वो लोग उसी समय 1928 में साइमन कमीशन जब आ गया, इंडिया आया था, उस समय ही वो लोग रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि वो लोग इंडिया के साथ इसमें अंदर नहीं रहेंगे। आगे चल के 1945 में फिजो साहब का नेतृत्व में वहाँ पर वो लोग वहाँ पर अलगाववादी मूवमेंट वहाँ पर चला, और 1955 के करीब चरम पर था, इंसर्जेंसी चरम तक पर था। उस समय जयप्रकाश नारायण वहाँ पर गांव-गांव में फ्रॉम हिल टू हिल जयप्रकाश नारायण वहाँ पर गए और लोगों का प्यार मिला उनको। मात्र नहीं, वहाँ का ये NBCC नागा बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, उन लोगों का भी विश्वास प्राप्त हुआ, और NBCC जो है वहाँ का चर्चेस एक पीस मिशन अपॉइंट किया, 3 मेंबर मिशन, जिसमें आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर BP चालीहा और इंडिपेंडेंट एक माइकल स्कॉट और जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण जी उस समय उन्होंने ये संभव इसलिए भी हुआ कि नागा लोग उनको बहुत मानते थे, उनका विश्वास जीत गए थे उन्होंने। तो उन्होंने सब्सिक्वेंटली उन्होंने कई सारा सुझाव दिया, जैसे नागा लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया और हम लोगों के केंद्र का सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लिया और 6 सितंबर 1964 को सीज फायर साइन किया। ये एक तो बड़ा ब्रेक थ्रू था, पहले ब्रेक थ्रू था जयप्रकाश नारायण जी का वजह से। और सब्सिक्वेंटली इसके अलावा साथियों, हाँ, उन्होंने एक अच्छा सुझाव ये वो पहले व्यक्ति थे यहाँ पर कि सिविलाइजेशनल यूनिटी शुड प्रिसीड, पहले सिविलाइजेशनल यूनिटी होना चाहिए पॉलिटिकल यूनिटी के से पहले, ये उन्होंने कहा था। और दूसरा, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहाँ पर इंग्लिश, स्कॉटिश और वेल्श लोग 3 अलग अलग देश एक देश के अंदर है, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी उन्होंने सुझाव वहाँ पर उस समय दिए थे। साथियों, लोहिया जी यहाँ पर बार बार नॉर्थ ईस्ट आ रहे थे। यहाँ पर जो इंसर्जेंसी अनरेस्ट जो था, उनका मानना था कि ये मुख्य रूप से अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से, बेरोजगारी के वजह से ये उनका मानना था। उन्होंने वो कहते थे कि आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, इसलिए उन्होंने उस समय उनका आर्थिक सोच भी ऐसा था, उन्होंने एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नाम का वर्ड उन्होंने कॉइन किया और आगे चल के उन्हीं का लीगेसी को आगे बढ़ाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस जब उद्योग मंत्री बने केंद्र में मोरारजी देसाई के सरकार में, ये एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को उन्होंने लागू किया। जैसे कि कई सारे चीज किए, एक तो एक साथ देश में 300 जिला में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र उन्होंने स्थापना किया, ताकि हम लोग यहाँ पर बिहार में, यूपी में और नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत लोग माइग्रेंट लोग बाहर जाते हैं, तो लोगों को वही स्थानीय जगह में उन लोगों को रोजगार मिले, उस कारण से ये किए। ये यहाँ पर मुख्य रूप से लोहिया जी यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत यहाँ पर काम होता है इनका, तो इस वजह से इसको भी डेवलप एनकरेजमेंट करना चाहिए। तो इस बात पर जॉर्ज फर्नांडिस का जो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द 1977 गवर्नमेंट, इसमें ये बताया गया कि कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो वस्तु प्रोड्यूस होता है, ये अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अगर प्रोड्यूस करेगा तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डबल टैक्स लगाया जाएगा, वेरएज कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ताकि ये लोग कॉम्पीट कर सके। और दूसरी बात, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसका तुलना किया जाए तो कई गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैदा होता है, उस कारण से। तो साथियों, और इसी का लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार जो बिहार में जो इनइक्वालिटीज को मिटाने के लिए उन्होंने कई सारा वहाँ पर काम किए और नॉर्थ ईस्ट, खास करके नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने इंटरेस्ट देना शुरू किए। और इस कारण से आप लोग जानते होंगे, बगल वाला जो उर्वशियम का जो प्रदेश है, जो अरुणाचल प्रदेश में पिछले असेंबली इलेक्शन में हम लोगों का 7 MLAs जीत गए। वैसे अभी इस साल में मणिपुर में जो हम लोगों का जो चुनाव जो हुआ उसमें 6 MLAs जीत गए। वैसे पिछले नागालैंड के चुनाव में भी हम लोगों का ये लोग जीत गए थे। और मैं आपसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के खास करके ये हैंडीक्राफ्ट के बारे में बोला, तो साथियों ये हैंडीक्राफ्ट्स जो बनाने वाले देश भर में सबसे ज़्यादा
पिछड़ी जाति के लोग हैं और महिलाएं हैं। हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं, पिछड़ा लोगों का सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो लोग जो बनाए हुआ प्रोडक्ट को हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। इतना कह करके मेरा समय का अभाव है, मैं मेरा बात समाप्त करता हूँ। Thank you, Shri Anil Hegde ji, for enlightening us with your words.